سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. حضور کے ہاتھوں کا معجزہ. حضور نے نبوت کا اعلان کیا. جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے والے مخالف ہو گیا. آپ سب جانتے تھے اچھی طرح, بہت مخالفت کا زور زورہ تھا. مکے والوں نے آج سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھا نہیں تھا. ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نبی کے حوالے سے. ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام, لیکن ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی. نسلاً بعد نسلیں جو باتیں پتا تھی وہی, اور اکثر کو انہوں نے بھلا دیا تھا. ایسے میں بہت ساری باتیں ہوئی, مکے والوں نے بہت ساری باتیں کی, لیکن ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ زیر ہو گئے. ایسے میں مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرنا چاہیے, جو نبوت کے متعلق معلومات زیادہ رکھتا ہو اس کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ان سے باتیں کی جائے. تو ابو جہل نے کہا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام حبیب ہے, میں حبیب کو خط لکھتا ہوں اور قاصد کو روانہ کرتا ہوں. قاصد جائے گا, تیز رفتار قاصد جائے گا اور وہ واپس آئے گا. وہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو لائے گا, اور حبیب میرا دوست تو آئے گا. وہ بہت ہوشیار ہے, وہ بہت چالاک ہے, وہ بہت جو ہے عقل والا ہے. اچھوں کی اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی, اور وہ باتوں کے داؤ پیچ میں لوگوں کو ایسا الجھا دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس سے بات نہیں کر پاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ابو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا. حبیب کو جیسے خط ملا, حبیب نے خط پڑھا. خط میں یہ لکھا تھا, میرے دوست, پرانی تیری میری دوستی ہے, ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے, اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر. تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات ہے نبی اور نبوت کے بارے میں, آ کر کے اس سے بات کر. ہمارے یہاں ایک شخص ہے, ہمارا ہی رشتہ دار ہے, اس کا نام محمد ہے. اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. ساری باتیں اس نے لکھی, اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھنساؤ کہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے, اور وہ جامد و ساقط ہو جائے, وہ لاجواب ہو جائے, تاکہ پھر ہم پورے مکے میں اس کے مشن کو ختم کر دیں. جیسے ہی حبیب کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا, حبیب نے اسی وقت اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھے مکہ آیا. اور مکے میں جب آیا تو پورے مکے میں جشن کا ماحول تھا, پورے مکے میں خوشیوں کا ماحول تھا. حبیب آیا, اتنا چتر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے داؤ پیچ میں پھنسا لیتا ہے. اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا. اگر کوئی جو ہے وہ شاعری میں بات کرے تو حبیب شاعری میں جواب دیتا ہے, کوئی لفظوں میں بات کرے, نثر میں بات کرے تو وہ نثر میں جواب دیتا ہے, کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی, ریاست کی کرے تو ریاست کی, مذہب کی کرے تو مذہب کی, وہ ساری باتوں کو جانتا ہے. بہت ہوشیار ہے حبیب آ گیا ہے. اب محمد عربی کو وہ لاجواب کر دے گا, لیکن یاد رکھے حق ہوتا ہے. حبیب آیا, شام کا وقت تھا. شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے, کیا آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہیں. کون کیا بات کرنا چاہتا ہو؟ کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, جب سکہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے. حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں. سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے, سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ لاجواب ہو جائیں گے محمد عربی. لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اللہ اکبر. حبیب سامنے آیا. سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. 14ویں شب ہے. چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے. وہ دودیا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑ کر وہاں سے نور حاصل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے, روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے. کیوں چاند سے تشبیہ دینا, یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. اللہ اللہ. حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی, میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے, آپ نے
के नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है इस्लाम जिसने कबूल किया, या अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अलग है, अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी, जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक। अगर हुजूर न जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5।
अब छठा हाथ का मोजेजा क्या, हालांकि ये एक मोजेजा नहीं, ये दर्जनों मोजेजात की जंजीर है, बेशक लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं, सिर्फ हाथ के जो हाथ से मुताल्लिक है हुजूर के वो बता रहा हूं, जो हाथ से मुताल्लिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो देखो, कुछ लोगों को जो अल्लाह अक्ल देता है ना वो हक कबूल करते, कुछ जो जिद्दी हटदरम होते हैं वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक मेरा सवाल पूरा हो गया, अब तक ध्यान दीजिए। हबीब ने देखा एक सवाल पूरा हो गया, इशारा किया चांद के टुकड़े, इशारा किया चांद जुड़ गया। अब हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, हबीब देख लिया ना, देख लिया ना, जी देख लिया, ढेर हो गया वो। हुजूर ने कहा अब दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? हुजूर दिलों के हालात जानते हैं, बेशक हुजूर दिलों की कैफियत जानते हैं। हबीब ने कहा अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। कहा तेरा सवाल भी बताता हूं, अब जवाब भी देता हूं। बोल तेरा दूसरा सवाल यही था ना कि तू जब घर से चला था, हाय हाय, जब तू घर से चला क्या था बात है, तो जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए करूंगा। अगर वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, नबी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूं। हबीब सुन सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आज़ा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब तेरा दूसरा सवाल यही है ना, तू शिफा चाहता है ना, शिफा चाहता है ना, बोल शिफा चाहता है ना। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ हाँ, हुजूर ने कहा बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा और जा, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने जा, तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा जा, आप जल्दी जा, घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बैली छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआजिज़ा। हबीब ने देखा बेटी तेरी ये कैफियत कैसे हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया। हबीब की बेटी ने कहा अब्बा जान, आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा। उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा, मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं।
تو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. ابا جان میں نے کلمہ پڑھا اس کا تو مسلمان ہو گئی تو میرا جسم اچھا ہو گیا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے.